सो वेलकम बैक गाइस। तो हमने एक लास्ट डे क्वेश्चन लिया था, ठीक है, जो हमने छोड़ा था आज के लिए। तो वी विल फोकस ऑन दैट क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट हर्माइट पॉलिनोमियल गुड। So problem was the Hermite polynomial and the Hermite polynomial Hnx satisfies the differential equation satisfies the differential equation differential equation. What was the differential equation? d2 upon dx square hn minus 2x d over dx of hnx. This is all the function of x, okay, plus 2n hnx, which is equals to 0. Now corresponding to this we have a generating function. The corresponding generating function corresponding generating function, say gtx, G is a function of t and x, which is equals to summation n tends to 0 to infinity 1 upon factorial n h and x t to the power n. Either I write here or here, no problem. Here, just t to the power n. Good. So the corresponding generative function gtx equals to this much. Satisfies the equation. Satisfies the equation. Satisfies the satisfies the equation. We have given 4 equations. Option A was del 2g upon del x square minus of 2x del g upon del x plus 2t del g over del t is equals to 0. Can I copy this? Copy, paste. Okay. 2 again, paste and paste. So the first option is here this, second here is del upon del g. Just here, right here, this negative of 2t square. The third option is your C is on 2x or plus, just remove t here. Just remove t here. And the fourth option is d, which is equals to del 2 upon del gx minus, just remove this t. Multiple of del x. These are your 4 options. So we need to find out which this generating function satisfies which of the following equation, all right, a, b, c or d. So for that, just solution. This color is visible, blue is visible now. So we have a generating function g, which is a function of x and t, which was your summation n is equals to 0 to infinity h and x all upon factorial
n and t to the power n. All right. So for satisfying these one of these options A, B, C, D, this will be hit and trial case. So first we will calculate del g over del x, which is a function x and t. So for that we will write what? This term summation n tends to 0 to infinity t to the power n upon factorial n. If I'll differentiate this term, this comes del upon del x, which is a function for h and x. All right, for first derivative. Same for the second order derivative. Second order derivative. Order derivative. For second order derivative, this is del square g upon del x square. All right, this must be a how much? Summation n tends to 0 to infinity t to the power n, because this will treat as constant. Only variable is your x, h and x. So I will write this one. All right. For now, the third option is for a g upon gt. Right. So del g upon del t, because g was a function of x and t. So we will derive this in terms of with respect to t. Now summation n tends to 0 to infinity. Now here hn will be treated as constant. And what? This was our generative function. Factor n t to the power n. So differentiating t to the power n must be n t to the power n minus 1 upon factorial n. Good. Into h and x will be treated as constant because we are differentiating with respect to t only. Is it okay with this? What we have done, we have just calculated, we have just turned it out what our generating function in terms of differentiate in terms of x, first order. Here comes because t to the power n and factorial n are our constant, so we will treat it as a constant. So the derivative function will be only h and x, which is a function of x. That's why. For the second order derivative, for g, again t upon t to the power n and factorial n will be treated as constant. So only the function will affect which one? H and x. So d2 upon dx square h and x. And the third term is we are differentiating what? G with respect to t. So for now, h and x will be treated as what? Constant, because there is no term of t in hn. So that t to the power n and factorial will be t to the power n will be affected. So on differentiating t to the power n, it will gives me n t to the power n minus 1. This was okay. Is there any problem? Now we have individual values of what? Del g upon del x, del 2g upon del x square, and del g upon del t. All right. Just substitute this value in option 1. So for we need first our equation is del 2g upon del x square minus 2x del g upon del x plus 2t upon del g upon del t. So for that, or for option A, for option A, del 2g upon del x square minus of 2x minus of 2x del g upon del x plus 2t del g upon del t, which is equals to 0 for option A. All right. I know del 2g is your summation. Sorry. This is summation n tends to 0 to infinity. This is t to the power n factorial n, t to the power n factorial n, 2t gx, 2t, just remove this x. You already know g is a function of x and t, so I'm not writing this again and again. Del g upon del x square. Good. Sorry.
This must be h and x. This must be h and x here. Alright. This must be your h and x minus 2x of what? Del g upon del x is factorial this much, this quantity upon del x of h and x. Summation n tends to 0 to infinity t to the power n upon factorial n t to the power factorial n into just what? Del h and x upon del x, sorry, dx plus 2t of g upon gt summation n tends to 0 to infinity. This becomes here what? T to the power, sorry, n t to the power n minus 1 upon factorial n into h and x, which is going to be constant, which is equals to 0. Now just multiply 2x inside here on 2t with this quantity. Okay. So the final equation will turns out to be n tends to 0 to infinity t to the power n upon factorial n del 2 upon h and x upon dx square. This must be d. Okay. Minus of summation n tends to 0 to infinity t upon n factorial. This becomes 2x into del h and x over dx. I place this 2x here. Alright, plus summation n tends to 0 to infinity t to the power n, t one quantity. If you multiply, this turns out to be t to the power n upon factorial n 2n h and x, which is equals to 0. These terms, which one? Summation, these terms are constant, can be taken out as common. So I common summation, yes, I write to negative green, summation 0 to infinity t to the power n upon factorial n, your d2h and x upon dx square minus of 2x del h and x upon dx plus 2n h and x is equals to 0, which is equals to 0. From for equation number 1, which is given, we know what? Del 2 upon del x square h and x minus 2x d upon dx h and x plus 2n plus multiply by hn is equals to 0. All right. So this is a 0 quantity. On multiplying this with our this coefficient, this comes to be 0, which satisfies the equation number 1. So the option A is correct. So the option A is correct. Hit and try. Alright, sometimes we need to check for second option, third option, fourth option. When the equation satisfies it comes to be 0, then we can say that the generating function satisfies the following equation. Good. So the correct option is A. Correct option is A. Okay. So this was our homework. Now we have studied yesterday orthogonal property. What? Orthogonal property. Orthogonal, just right here. Orthogonal property. So in orthogonal property, we have calculated minus infinity to plus infinity e to the power minus x square h n x hmx into dx, which is equals to 0 if m does not equals to n,
and what 2 to the power n factorial n into root pi. This was if m is equals to n. This what we have calculated in our last lecture. So on behalf of this, on behalf of this, we are going to calculate some numericals. All right. So this is our orthogonal property for Hermite, Hermite polynomial. We have derived this yesterday. So now a question says find the value of find the value of integral minus infinity to plus infinity e to the power x squared h 2x h 3x into dx. So what would be the value? Anyone? What will be the value of this integral? 0. It comes to be 0. Why? Because I know here n and m are different. So according to this property, this is going to be 0. What do you write? We write we have what? Or we can say we know what? Orthogonal property, which is minus infinity to plus infinity e to the power minus x square h and x hmx is equal dx is equals to 0 for if m does not equals to n. Now here for the question, m is here, m is your sorry n is your m is 3 and n is 2. All right. So m and n are different. I know m and does not equals to n. So according to the orthogonal property of Hermite polynomial, I conclude that what integral minus infinity to plus infinity e to the power minus x square h 2x h2x h3x dx is 0. This is the answer. Good. सही है. ठीक. On behalf of second property, there is a question. Question says find the value of what? Integral minus infinity to plus infinity e to the power what? Minus x square h 2x to the power 2 into dx. So what is the value? What is the answer of this integral? अरे कितना होगा भाई बताओ. You know the property. 8th का बच्चा भी बता देगा भाई अब तो. कितना आएगा इसका आंसर? 8 रूट है 8 रूट पाई आएगा बेटा. ठीक है ना. 8 रूट पाई आएगा. अच्छा मल्टीप्लाई. ठीक. तो क्या करना है हमने जस्ट प्रॉपर्टी को फॉलो करना है. सॉल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी थी इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम स्क्वायर. बोल दो सीधे. ठीक है. विच इज 2n n factorial. Sorry, if I'm using n then just write here n. ठीक है ना. Factorial root pi. This was our property.
Good. I know from the equation n is equals to 2. So just 2 to the power 2 factorial 2 into root pi. This becomes 4 factorial 2 is 2 root pi. Then the answer becomes 8 root pi. ठीक है भाई. So the value of integral minus infinity to plus infinity e to the power x square h to x to the power whole square dx must be your 8 root pi. ठीक है. चलो ये बताओ तो जरा, इसको फाइंड आउट करो जल्दी. e to the power x say 4x square dx. बताओ how much will be the value. This is 4, huh? Now the value of n is 4. Value of n is 4. 384. ठीक. So we know the formula 2 to the power n factorial n into what? Into root pi. Root pi. Good. Just substitute the value of n is 4 to the power 4 factorial 4 into root pi. So how much will be the value? 60 multiply factorial. This must be 4 into 3 into 2 into 1 factorial. 24 16 24 384. ठीक है भाई. तो ऐसे ही आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं कभी. ठीक है ना. इनकी वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकते हो. मैं 9 डाल सकता हूँ. तो यू जस्ट नीड टू नो व्हाट expansion for what orthogonal property for Hermite polynomial. If you know this formula, just substitute the value of n, and if you can see n and m are different, you can conclude this is going to be 0 direct. Without using your pen, you can directly say that if in any question, if the question says suppose plus infinity e to the power x square, say 20 x and say 102x dx, what will be the value? Options are 36924. Option B is your root pi. Option C is 9023 root pi, 234 root pi, or option D is 0. So you will just option will be 0. Why? You can easily know here n is your 20 or m is your 104, 102. So according to the property of orthogonal of Hermite polynomial, you can say if n and m are different, then the result is going to be 0. Good. बस तो फॉर्मूला याद रखना होगा. ठीक है. So this is from orthogonal property of Hermite polynomial. ठीक है. Now today's topic is on Rodrigue formula. All right. Rodrigue formula. Rodrigue formula. So the Rodrigue formula of Hermite polynomial Hermite polynomial. अरे समझ में आ रहा है ना. कोई जैसा दिक्कत तो नहीं हो रही है. ठीक है. समझ में आ रहा है ना. आवाज सबको क्लियर है. बोर्ड दिख रहा होगा ना. So the Rodrigue formula of Hermite polynomial says Hn(x) is going to be minus 1 to the power n e to the power x square, the nth derivative of x for e to the power minus x square.
यही फॉर्मूला आपका बाद में क्या निकालेगा, पोलिनोमियल निकालेगा। h0 की वैल्यू, h0x की वैल्यू, ठीक, h1 की वैल्यू, आई नो h and x, ठीक। सो दिस विल कैलकुलेट hn0 फॉर वैल्यू ऑफ hn0, h1x, एक पॉलिनोमियल सीरीज आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कोई समथिंग कांस्टेंट आएगा तो ये 2x आता है, ठीक है। h2x आपका आएगा समथिंग 12 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसे कुछ आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका प्लॉट भी देखेंगे हम मैथमेटिका में भी। मैंने बताया था ना लास्ट, मतलब डे 1 पे मैंने बोला था कि इनको प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो बुक्स में दिखते हैं वो हाथ से तो टिपिकल है बेटा, प्लॉट होना, प्लॉट हो जाएंगे, लेकिन वी हैव टूल्स, सो इन 1 सेकंड वी कैन प्लॉट ईच एंड एवरी, टिल कहाँ तक, मतलब इनफाइनाइट, एच की वैल्यू एन तक हम प्लॉट कर सकते हैं उसमें, कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। सो दिस इज अवर Rodrigue formula of Hermite polynomial. So in right hand side I can see e to the power x square, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम सिर्फ कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन से। सो फॉर प्रूफ we know the generating function, we know the generating function of Hermite polynomial is given by, कितना होता है भाई, e to the power 2tx minus t square is equals to summation 0 to infinity t to the power n upon factorial n into h and x. गुड, ठीक है ना। सॉरी, अरे ठीक है ना, ठीक। हम्म, तो अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करो। राइट हैंड साइड को एक्सपेंड हुई, h की वैल्यू 0 है तो t to the power 0 is 1, factorial 0 is 1, so the first term is h0x। ये ठीक समझ में आया ना। अरे t to the power 0 है, सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ना समेशन फॉर्म पे, तो पहला टर्म क्या होगा 0 से, फाइनल टर्म क्या होगा इन्फिनिटी तक, तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 0। so for the coefficient of h0x must be 1, why t to the power n, if n is 0, so t to the power 0 gives 1 and factorial 0 gives me 1, so the coefficient of h0x is 1। second second term, t to the power, sorry, n equals to 1, so here it will t upon factorial 1 h1x plus 2 upon factorial 2 h2x। अरे समझ में आ रहा है, ठीक। कहाँ तक जाएगा ये? इसको अगर हम एक्सपेंड करें, कहा टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एच एन एक्स, एक टर्म और एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, टी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 एच एन प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है भाई, ठीक। सो दिस इज द expand series for our series for what, a generating function। good, differentiate both side, differentiate both side, differentiate both side with respect to t, with respect to t for how much times, n times, and put t equals to 0, n टाइम को डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, और t की वैल्यू वहां पर पे 0 रख देनी, ठीक है। अरे भाई ये बार बार ज्वाइन मत करो, फिर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे से फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, फिर ये यूट्यूब वीडियो आएगा उसमें चेक कर लेना। हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है n times with terms, with respect to t, and put the value of t is equals to 0, ठीक है भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इजी है, n अपॉन del t n, this become e to tx minus t square
यही तो बोला मैंने क्या बोला, दोनों तरफ को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड इसका यहाँ पर ये रहेगा, हाँ भाई, ई टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, वो राइट हैंड साइड हमने एक्सपेंड कर रखा है, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड एन टर्म सिर्फ यहाँ पर रहेगा, पहला टर्म मिलेगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सो दिस विल गिव मी व्हाट, डिफरेंशिएटिंग टी टू द पावर एन, ये कितना हो जाएगा, इसको एन टाइम्स करेंगे तो कितना बचेगा, फैक्टोरियल एन बार आएगा ये। अरे टी टू द पावर एन है, ठीक है ना, तो इसको हमने कहां तक करना है, एन टाइम्स करना है, तो मुझे क्या दे देगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस टू, अब तो कहां तक जाएगा, फैक्टोरियल एन तक चला जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल एन हो जाएगा, तो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर आएगा फैक्टोरियल एन, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल एन है ही। ये समझ में आया ना क्या हुआ, फर्स्ट बार का डिफरेंशिएट करूंगा तो एन देगा, ये वाला टर्म, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ पा रहा है, बाकी टर्म क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि एक से अधिक बार करेंगे तो एन टाइम्स तक सब जीरो हो जाएंगे। अरे ये देखो, अगर डी टू द पावर आर एक्स टू द पावर एन है, अगर क्या हो जाए, आर बड़ा हो जाए, ठीक है ना भाई, जस्ट यहाँ पर देखो आपको समझाता हूँ, एक्स क्यूब था आपका, ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, डेल अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा इसका, 3x स्क्वायर, इतना हो गया, समझ में आया, अरे बोलो, डेल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 6x, डेल तीन बार कर दो इसको डिफरेंशिएट, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसकी पावर बढ़ जाएगी, कहां पर, डी टू द पावर एन, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट एन एंड एक्स की पावर आर, इफ एन इज ग्रेटर देन आर तो जीरो आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स क्यूब, इसको 4 टाइम करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बाकी के जो पहले के टर्म्स हैं ये सारी, ये क्योंकि एन टाइम्स तक जानी है तो क्या हो जाएंगी, जीरो दे देंगे, तो हमको जो सिर्फ टर्म मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, एन वाले टर्म्स पे। तो अगर हम एन को डिफरेंशिएट करते रहे, एन को क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें फर्स्ट टर्म पे तो कितना, पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा, एन टी टू द पावर एन माइनस वन, अरे होगा ना, इसको डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम करूंगा तो एन एन माइनस वन टी टू द पावर एन माइनस टू, यही तो होगा, आ रहा है समझ में, हाँ, तो ऐसे अगर एन टाइम्स तक लेके जाऊंगा तो कहां पर एक सीरीज बन जाएगी, फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला खुलेगा, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अप टू सो चलता रहेगा एन टाइम्स तक, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या ले लूंगा, आई नो दिस इज गोइंग टू बी फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला है मेरा, ठीक, वैसे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला था नहीं है, तो मैंने फैक्टोरियल लिख दिया, फैक्टोरियल यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है ना, टी को आपने क्या रखना है वहां पर, जीरो रख के चलना है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एच एन एक्स, एक टाइम तक एन की बार करोगे तो कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एच एन एक्स, ये समझ में आया, तो एच एन एक्स इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो गया, अरे समझ में आया ना, कांस्टेंट बचा देगा ना, अगर क्या दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ दो बार, तो एक फर्स्ट टाइम पे कितना होगा, फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x, सेकंड टाइम डेरिवेटिव पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टाइम फैक्टोरियल दे दी उसको, ठीक है ना, तो टी इसलिए गायब हो गया वहां से, तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एच एन एक्स बचा हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना बच गया भाई, डेल एन अपॉन डेल टी एन ई टू द पावर, ई टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म पे लाने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, अरे समझ में आ रहा है ना, इसको मेरे को कंप्लीट स्क्वायर निकालना है, कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या करूँ, हमने कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अगर मैं ऐसे नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2tx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक टर्म से ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिए ये वाले टर्म से, ठीक है, अरे समझ में आया,
सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये कॉमन है, एक्स के टी के फंक्शन कोई मतलब नहीं, ये वाला कौन सा टर्म, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो बाहर ले लिया मैंने, क्या गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये आ गया डेल अपॉन डेल नाइन एन अपॉन डेल टी ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस टी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ एट टी इक्वल्स टू जीरो में लेके चल लेते, एट टी इक्वल्स टू जीरो में एजम्पशन माना है, बस इसको क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट एक्स माइनस टी इक्वल्स टू यू, तो कितना हो गया डेल अपॉन डेल टी, क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल यू अपॉन डेल टी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ से डेल यू अपॉन डेल टी निकालूंगा तो माइनस वन आ जाएगा सीधे, अरे इसको मैं अगर किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करूँ, टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूँ तो माइनस वन दे देगा, यहाँ पर क्या ना राइट हैंड साइड डेल यू अपॉन वो आ जाएगा, ये कांस्टेंट की ट्रीट हो रहा है, सो दिस बिकम्स योर व्हाट, डेल अपॉन डेल टी बिकम्स माइनस ऑफ माइनस वन ऑफ डेल अपॉन डेल यू, ये वैल्यू रख दी मैंने बस और कुछ नहीं किया, माइनस वन, ठीक है ना। सो एच एन एक्स बिकम्स योर व्हाट, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब कितनी बार कर रहे हैं इसको हम, एन टाइम्स कर रहे हैं, ठीक, डेल एन अपॉन डेल यू एन ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर, गुड। put t equals to 0 and say this at t equals to 0 and now substitute u as x, so hnx, because we need to calculate in terms of hnx, so x square minus 1 to the power n whole upon sorry del n upon dxn e to the power minus x square, so this is our Rodrigue formula, Rod Rodrigue formula for Hermite polynomial. Now put n equals to 0 here. Put n equals to 0 in this equation. So your h and x will be h0x, e to the power x square will be same. Something of something power of 0 is going to be 1. Just remove this one. And this is again 0, sorry 1 to the power differentiate. So this will give me minus x square. This will give me e to the power 0, this will 1. So h0x is your 1. ठीक है. Second, put the value of n equals to 1. Put the value of n equals to 1. तो कितना हो जाएगा भाई, h1x कितना हो जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, यहाँ पर 1 है तो माइनस वन आ गया, और इसको क्या करना है, सिर्फ 1 बार डिफ्रेंशिएट करना है, d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो ये वही रहेगा क्योंकि ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल का भी वेरी नहीं करता, और कितना हो जाएगा माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एक्स आ गया, ये कैंसिल आउट हो गए तो कितना हो गया, टू एक्स आ गया, तो क्या हो गया एच वन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, टू एक्स, ठीक है। ऐसी एच टू की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ऐसी एच थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एच टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये समथिंग आती है आपकी फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, अभी कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक। और इनके प्लॉट भी देखने पॉलिनोमियल, अब आगे ना सीरीज पॉलिनोमियल में नहीं, जैसे बढ़ते रहेंगे इनकी सीरीज, ये क्या कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल सॉरी एक्स के क्वाड्रेटिक फॉर्म पे या इसके बाद क्यूबिक फॉर्म पे, फिर ऐसे पावर बढ़ते रहेगी, एक्स की पावर बढ़ते रहेगी, जैसे पहला कांस्टेंट आया, पहला क्या था वैल्यू वन, फिर कितना आया था टू एक्स, फिर थर्ड टर्म कितना आया आपका फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो ऐसे एक्स की पावर बढ़ते रहेगी, ठीक है, ये समझ में आया ना, ठीक। सॉरी, स्क्रीन शो हो रही है,
ठीक है भाई, अब ये जो हम कैलकुलेट करा ये हम लोग निकालते हैं कहाँ? प्रोग्राम पे देखते हैं इनका, इनकी वैल्यूज कैसे कैसे आती है। ठीक है भाई। एच एन एक्स कितना रहा देखो वहां पर। एच एन एक्स क्या था? ये था रोडिक फॉर्मूला। ठीक है ना, ये याद है ना फॉर्मूला। अब हम लिखते हैं वहां पर। बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले। कौन सा फंक्शन? एच एन एक्स बोलते हैं इसको। दिख रहा है? छोटा दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ बेटा, इसका जूम कैसे बढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एच एन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये खाली आप लोगों को करने के बेटा दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है, एक बार रुको। हाँ, मैग्निफिकेशन 200%। अब दिख रहा है अब देखिएगा लो। अब दिखने लग गया ना? तो हर्माइट पॉलिनोमियल हमने डिफाइन कर दिया, एच एन एक्स। ये फंक्शन है, कमांड है, ठीक है ना? ये आप लोगों को समझना नहीं, ये मैं मेरे लिए है। फॉर्मूला क्या था? -1 -1 टू द पावर एन था। टू द पावर एन था। आइदर यू कैन टेक इट एज इन ब्रैकेट मल्टीपल ऑफ क्या था वहां पर, उसके बाद क्या था? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर था, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर था ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोनेंशियल, या ऐसा लिखा जाता है। कितना था? एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। फिर क्या था? डिफरेंशिएट करना था आपको ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, कब तक? एन टाइम्स तक ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, डिफरेंशिएट को ले, यहाँ पर डी कमांड आती है। और हमको क्या लिखना था? एक्सपोनेंशियल लिखना था। एक्सपोनेंशियल फॉर व्हाट? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो लिखना था। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना था? एक्स के रिस्पेक्ट में करना था। कौन सी वैल्यू तक? एन टर्म्स तक। ये कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जनरेट हो गया। अब हमने लिखना है क्या? अब हमने करना है प्लॉट, कहाँ के लिए? वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। एच जीरो के लिए निकालते हैं। एच जीरो के लिए कितना आना चाहिए था वैसे? 2 आना चाहिए था ना। सॉरी, एच जीरो के लिए 1 आनी चाहिए थी वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं हम। अच्छा, एक स्टार लगा लो, बाद में दिक्कत ना। रद्द तो करवाया नहीं गया, चेक कर लेते हैं रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है ना। हमने निकालनी, इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पर से इवेल्युएट करते हैं किसके लिए? टेबल फॉर्म पे ले आते हैं इसको। टेबल लेवल्ड, टेबल लेबल, LABLE, लेबल्ड फॉर व्हाट? रिवर एच एन, ये फंक्शन हमने डाल दिया। ठीक है, कहाँ तक? किसके लिए? एन वैल्यूज के लिए निकालना है आपको। कब तक? एन की कौन सी वैल्यू के लिए? एन की वैल्यू है आपकी 0 के लिए। ठीक है, एन की वैल्यू है 0। ये किया हमने फिर इसको, अरे यार, इसको करा हमने सिंप्लीफाई। एच एन एक्स की वैल्यू ऐसे शो क्यों कर रहा है? 0 के लिए। कुछ दिक्कत हुई है क्या फॉर्मूले में हमारी? अच्छा, इसको ऐसे लेके चलो। एक सेकेंड ना।
वैसे इसमें हर्माइट फंक्शन ऑलरेडी जनरेटेड होता है, ठीक है ना। अब देखो हर्माइट आपको किसके लिए निकालना है, अगर निकालना है हर्माइट कौन सी वैल्यू के लिए, एन की वैल्यू क्या थी हमारी, जीरो थी ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो ये सीधे बता देगा। देखो ये वन आ गई, देखो वैल्यू आ गई। अभी जनरेट क्यों नहीं हो रहा देखते हैं पहले इसको। अब देखो हर्माइट की वैल्यू कौन सी के लिए, एन इक्वल्स टू वन के लिए, देखो टू एक्स आ गया था, यही आ रहा था हमारा टू एक्स। अब देखो क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है जो हम हर्माइट यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, वैसे इसमें भी आना चाहिए, भी देखता हूँ क्या हो रहा है। तो ये हर्माइट उन्होंने ऑलरेडी मतलब प्रोग्रामर्स ने पहले कोड कर रखा है, ठीक है। अब देखो टू की वैल्यू डाल के देखते कितना आना चाहिए, टू के लिए कितना आना चाहिए वहां पर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ना, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया, ठीक है। अब अगर इसको थ्री करके देखें, देखो थ्री के लिए ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। स्क्वायर की फॉर्म पर हटा के देखते हैं, यहाँ भी रन करना चाहिए था, एक सेकेंड हम। एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस स्क्वायर एक्स माइनस टू, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया इवेल्युएट, टेबल डालिए, लेवल डाल दिया एच एन एक्स का फैक्टोरियल एन, एन की वैल्यू जीरो के लिए। ये माइनस वन क्यों दे रहा है भाई, इसको तो वन आना चाहिए था। एक सेकेंड देखते हैं, हाँ ऐसा करके देखे, हाँ अब सही है, ठीक है ना। अब देखो ये प्रोग्राम भी रन रहा है, आइदर वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला जो इनका प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मुझे इसमें मतलब ही नहीं इससे कुछ, ठीक है। ये मतलब इनफाइनाइट तक आप फोर डालोगे तब भी आ जाएगा वैल्यू, देखो ये पॉलिनोमियल आ गई ना बढ़ती हुई सीरीज में, देखो फोर की, अब इसको फाइव में डालूंगा तो फाइव की पावर में आ जाता है यहाँ, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। तो इससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मेरा कंसर्न किसके पे था, फॉर्मूले पे था। आइदर वी कैन कैलकुलेट मैनुअली यहाँ जैसे हमने कर रहे थे ये सब, और वी हैव अ टूल। तो क्या करना है, अब हमको क्या करना है, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जीरो के लिए सॉरी, जीरो के लिए वन आ गया, अब वन के लिए कितना आना चाहिए, टू एक्स आना चाहिए, वन के लिए टू एक्स आ गया, देखो आने लग गया ना। अब थ्री के लिए कितना आना, सॉरी टू के लिए कितना आना चाहिए, टू एक्स आना चाहिए, सॉरी अच्छा इसमें सिंप्लीफाई डाला, फोर एक्स आना चाहिए, सिंप्लीफाई करना है बस, तब लेगा ये, ठीक है ना, वरना पूरा एक्सपेंशन करेगा, सॉल्व नहीं करेगा। वो भी सही है हमारा, ठीक है ना, अगर मैं कमांड नहीं डालता हूँ सिंप्लीफाई की, ठीक है। अगर मैं सिंप्लीफाई कमांड नहीं डालता तो उसने ही खोल दिया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो कितना आने वाला है, उतना ही आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई की कमांड डाली और ये आ गया। अब देखो थ्री के लिए देखो इतना आ गया, फोर के लिए देखो, ऐसे मैं वैल्यू वेरी करवाते रहूंगा और कितना आ जाएगा, वैल्यू आते रहेगी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन वी कैन कैलकुलेट आवर हर्माइट पोलिनोमियल, सीरीज एक्सपेंशन फॉर्म पे आ रहा है, ये सही है। अब डालो आप, प्लॉट करके देखते हैं इंडिविजुअल का, ठीक है ना, कितना कितना हमारी वैल्यूज आ रही हैं। सॉरी। तो आपने प्लॉट क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है, प्लॉट पहले वन को करना है, फिर टू एक्स, दो को डालते हैं पहले, ठीक है बेटा, फिर लेंदी हो जाएगा, टू हो गया, कहाँ से कहाँ तक, एक सीक्वेंस हम एक्स को वेरी करवा देते हैं, एक्स को वेरी करवा दे माइनस वन से लेके प्लस वन तक, ठीक। इसमें थीम डाल देते हैं, प्लॉट थीम डाल दो, दिख रहा है ना, ये ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ठीक है ना, प्लॉट थीम, प्लॉट थीम इसको डाल दो डिटेलिंग, डिटेल्ड में, प्लॉट थीम भी हो गया। अब हमने डालना है लेवलिंग कर देते हैं, फ्रेम लेवल करते हैं हम कितना, फ्रेम लेवल कर दिया हमने, फ्रेम लेवल में डालते हैं हम, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, एच एन एक्स चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, एच एन एक्स, तो एच एन एक्स चाहिए, तो ये लगा दो इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एच एन एक्स तो आ गया भाई,
फिर चाहिए ऊपर साइड पे हमें नन। ठीक है, इसको करो कॉपी। बोर तो नहीं हो रहा ना बेटा? ठीक है, क्योंकि अभी जो प्लॉट आएंगे वो मैं हाथ से बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं। एक्स लाना है हमने प्लॉट के फॉर्म पे और नन डाल देना है। ठीक, और दूसरा कमांड की अब डिटेलिंग लेबलिंग होगी हमारी एक्स और वाई एक्सिस के लिए। और प्लॉट लो, ये देखो एच एन एक्स आ गया यहाँ, वैल्यू एक्स वेरी करवा दी, कहाँ से -1 से +1। ठीक है ना? तो पहले कांस्टेंट वाले के लिए शो करता नहीं करता देखते हैं। ये 1 के लिए तो सिंपल सी वैल्यू कांस्टेंट आएगा ग्राफ। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? अब देखो 2x बुक्स में देखना ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे। 2x के लिए कितना हो जाएगा? ये ऐसे जाएगा जो ये ऑरेंज वाली लाइन है। अब आपको क्या था, थर्ड के लिए देखना था ना, 2 के लिए देखना था, h2 के लिए। तो कितना हो जाएगा? वो ये था आपका क्या, 4x² - 2। तो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, h3 के लिए देखना है, h3 के लिए देखना है। h3 के लिए क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो ना जो और ये रेड से आ रहा है, ये साइन वेव जैसा। सो दीज आर द प्लॉट्स। अब चौथे के लिए भी देख लो, चौथे के लिए कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। और कैलकुलेट करना है, अगर मैं 5 के लिए वैल्यू वैल्यू करवाता हूँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये अच्छा ये पूरा दिख नहीं रहा ना, आउट ऑफ प्लॉट रेंज ज्यादा है। प्लॉट रेंज आपकी आ गई फुल। ये देखो, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू की, वेयर 1 इज फॉर योर h0x, 2x किसके लिए था, h1 के लिए था, और ये किसके लिए था, h2 के लिए, h2x के लिए। ठीक है, तो फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल वी कैन प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी यूज इन आवर, कहाँ यूज होता है भाई ये हार्मोनिक, सॉरी ऑसिलेटर में। कहाँ? ऑसिलेटर पे यूज होता है। ठीक है, इसमें लिख भी लो, ये समझ में आ गया ना बेटा, डिफरेंट वैल्यू के ग्राफ कैसे कैसे प्लॉट होते हैं, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है। ओके, अरे सही है इतना। हम्म, तो अब हम देखते हैं यह। ठीक, तो हम वी कैन से Hermite polynomial, our Hermite polynomial is going to be used for, एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन क्या है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एनालिसिस ऑफ, ऐसा लिख लो उसको, एनालिसिस ऑफ क्वांटम हार्मोनिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। फॉर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर होता है वहां पर। ठीक है, लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं वहां पर, ऑपरेटर एंड रेजिंग ऑपरेटर। तो ये यूज होगा वहां पर। ठीक है, ये इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स हैं वो वहां यूज होंगे। ठीक है, तो जो इसको स्पेशल फंक्शन इसीलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी यूज इन अवर फिजिक्स डायरेक्टली, तो इससे दीज आर द स्पेशल फंक्शन। गुड, so there are some recurrence formulas, just go through books, derive these formulas, and in our next lecture we will continue Legendre or Legre or Bessel anything. ठीक? All right, so this is your Hermite polynomial, and today we had calculated what Rodrigue formula for Hermite polynomial. And apart from all these things, we had plotted our what graphs regarding these polynomial, regarding these polynomial. ठीक है, अरे ठीक है भाई। So on next lecture we will continue some other special function. Thank you.